Subscribe to my channel The Classroom and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello everyone, welcome back again to my channel The Classroom. So here I am with the second part of the data analysis project that we were doing. Basically we were analyzing the movies data. ठीक है, IMDb जो movies को rate करती है उसका हमने एक CSV file लिया है. And what we are going to do is, we are going to do the analysis on that. This is the second part. If you haven't watched the first part yet, I would suggest you to watch that first and then come back here again. And please watch this video till end. बीच से बिल्कुल नहीं छोड़ना है. Right? Okay. So, वो बोलते हैं ना that आधा knowledge is very dangerous. So, don't leave this video from in between. Just try to watch this video till end. And please subscribe to my channel if you are new here, and the old ones please hit the thumbs up button and do tell me in comments how do you like my videos. Fine, so now without wasting any time, let's get started with programming. So in the last video we covered the introduction module, the read module, clear module, right? In this video I'll try to cover the data analysis menu and the graph menu. Both the modules will try to cover because they are simple enough. Yes. If you are having any doubts regarding what the functions are used here, then you can see my Python Pandas playlist. There are so many videos that I have already created for clearing your concept. So the link to which you'll find here in the I icon and also in the description box below. Fine. So in the data analysis menu, what is there in data analysis menu? Fine. So what we'll do here is, first of all, I'll just execute this so that you'll get again an idea that how this is working. Right. यहाँ पे मैंने enter press किया, मेरे पास main menu आ गया जिसमें I have 4 options. Let's go to data analysis menu. डेटा एनालिसिस मेन्यू में जाके ये सारे फंक्शंस हैं हमारे पास. ठीक है, शो कॉलम, शो टॉप रोज. सो नाउ इफ आई वांट टू सी दैट ओके, डेटा की समरी देखते हैं हम लोग. पूरा डेटा जितना भी है उसका समरी. काउंट है 10,000, वोट काउंट, वोट एवरेज. ठीक है, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, 25%, 50%, 75%, ये सारे क्वार्टाइल्स हैं. राइट. एंड मैक्सिमम वैल्यूज सबकी. तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका पूरा हमारा एक स्टैटिस्टिक डेटा समरी आ गया. नाउ अगेन व्हेन आई प्रेस एनी की, डेटा एनालिसिस मेन्यू वापस दिखने लग जाएगा. राइट. तो ये प्रोजेक्ट बना रहे थे. नाउ लेट्स जस्ट मिनिमाइज दिस एंड फोकस ऑन टू अवर कोडिंग सेक्शन. रीड डेटा एनालिसिस के मॉड्यूल में भी सबसे पहले हमें रीड CSV करवाना पड़ेगा. राइट. वी हैव टू रीड द CSV फाइल, तब भी उस पर हम कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे. तो ये रीड करके रख कहाँ रही हूँ, एक डेटा फ्रेम में. राइट. अब क्या करना है मुझे, while true. ठीक है, अगेन दिस इज इनफाइनाइट लूप. आई एम कॉलिंग द क्लियर फंक्शन. क्लियर मॉड्यूल बुलाने के बाद डेटा एनालिसिस मेन्यू को मैं प्रिंट करवा रही हूँ जिसमें 13 ऑप्शंस हैं. नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल, यू कैन सी हियर. Then I'm taking input from the user, that what user wants to see, whether he wants to see the columns, see the top row, see the bottom row, add a new record, etc. Fine. If user input equals to 1, अब 1 पे क्या है, show columns. अब columns जब अगर user को देखने हैं तो हम data frame का columns वाला फंक्शन यूज़ करेंगे. ठीक है, df.columns लिखने पे पूरी की पूरी कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगी. CSV फाइल में जितनी भी कॉलम्स हैं सारी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी. नाउ वन थिंग टू नोटिस ओवर हियर, सारे फंक्शंस के बाद जनरली हियर वी आर हैविंग 2 such brackets, but in columns we are not having such brackets. Now you would have seen in the sample paper which is provided by CBSE of 2021, उसमें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. राइट. वो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं. आपको एक डेटा फ्रेम दे दिया जाएगा या आपको सीरीज दे दी जाएगी, उस पर से वो लोग बोलेंगे कि इसमें से सिर्फ कॉलम निकाल के दिखाओ, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के दिखाओ. सो ये प्रोजेक्ट आप करोगे ना अच्छे से, ये वीडियो में ध्यान दे दोगे अच्छे से, तो आपके जो थियोरी पोर्शन है वो भी कवर होता जाएगा. Now we'll go to the second option, that if choice is equals to. second option पे हमारे पास है show top rows. ठीक है,
शो टॉप रोज में हम क्या करेंगे, हेड फंक्शन यूज करेंगे, राइट, हेड एंड टेल फंक्शन. इफ यू वुड हैव रिमेंबर, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस. ओके, यस. सो इधर हेड फंक्शन यूज किया है, बट कितने हेड मतलब कितने टॉप रोज देखने हैं वो हम वापस यूजर से पूछ रहे हैं. सो इन n वेरिएबल आई एम स्टोरिंग वन इंटीजर इनपुट दैट एंटर टोटल नंबर ऑफ टॉप रोज टू बी डिस्प्लेड. ठीक है, उतने ही हेड हमें देखने हैं. मतलब यहाँ पे अगर आपको पता है कि ऊपर के 5 ही देखने हैं, सिर्फ 5 टॉप रोज यू नीड टू बी डिस्प्लेड, तो यहाँ पे सीधा आप 5 लिख सकते हो. बट यहाँ पे हम यूजर के पास से पूछ रहे हैं, सो हियर वी हैव स्टोर्ड इट इनटू द n वेरिएबल, तो यहाँ पे n लिखेंगे. ठीक है, अगेन वेट इक्वल्स टू इनपुट, मतलब कोई भी प्रेस होगी की तो वो आगे वापस से सेम मेन्यू दिखाएगा, राइट. थर्ड चॉइस में है बॉटम मोस्ट रोज. ठीक है, तो अगेन इसके लिए हम टेल फंक्शन यूज करेंगे. कितने बॉटम मोस्ट रोज देखने हैं, तो वो स्टोर्ड है n वेरिएबल में. सो वी हैव रिटन हियर df डॉट टेल. अब ये df क्या है, df हमारे जहाँ पे हमने रीड csv करवाया, ठीक है, हमारी csv फाइल जो वेरिएबल में पड़ी है वो है df. df इज बेसिकली अ डेटा फ्रेम. ठीक है, डेटा फ्रेम के सारे जो फंक्शंस होंगे वो csv फाइल को हम जब रीड करते हैं पांडास के थ्रू, तो डेटा फ्रेम के सारे फंक्शन उस पर अप्लाई होंगे. सो यहाँ पे टेल हो गया. नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज शो वन पर्टिकुलर कॉलम. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम देखनी है, तो सबसे पहले तो हम प्रिंट करवाएंगे कि हमारे पास कितनी कॉलम्स है, टोटल कॉलम्स. तो यहाँ पे df डॉट कॉलम्स विल यूज ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और फिर हम यूजर से पूछेंगे कि तेरे को कौन से पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देखना है. ठीक है, तो कॉल नेम मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें आई एम टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर दैट एंटर द कॉलम नेम दैट यू वांट टू प्रिंट. After that, I'll write here df of column name. अब देखो, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम हमें एक्सेस करनी होती है इन डेटा फ्रेम, तो हम क्या लिखते हैं, डेटा फ्रेम का नाम जो भी है. ठीक है, मेरे लिए df है, आपके लिए d1 हो सकता है, d2 हो सकता है, whatever the data frame name you are having, in the square brackets we'll write the particular column that we want to see. और वो कॉलम का नाम पड़ा कहाँ पे है अभी मेरे पास, ये वाले वेरिएबल में, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा. अगर मेरे को सपोज करो कि लैंग्वेज कॉलम का ही डेटा देखना है, मुझे पता ही है कि मुझे लैंग्वेज कॉलम का ही डेटा देखना है, सो हियर वन चेंज विल बी देयर, आई राइट इन द कोटेशन मार्क्स लैंग्वेज. ठीक है, बट राइट नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम यूजर, तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया वो मेरा वेरिएबल में स्टोर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं. अगेन वेट इक्वल्स टू इनपुट, कि जब भी कोई की प्रेस होगी तब वो वापस से मेन्यू प्रिंट कर देगा, राइट. एलिफ यूजर इनपुट इक्वल्स टू 5. तो यूजर इनपुट इक्वल्स टू 5 में क्या है, हम डेटा एंटर कर रहे हैं, मतलब एक नया रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं. जब भी हम नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तब हमें सारे कॉलम्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पे A to F इतनी कॉलम्स हैं. ठीक है, और वो कॉलम्स में मैं सारा इनपुट ले रही हूँ यूज़र के पास से, दैट एंटर इंडेक्स नंबर, एंटर न्यू मूवी नेम दैट यू वांट टू एंटर, द मूवी ओवरव्यू, द लैंग्वेज ऑफ द मूवी, वोट काउंट एंड वोट एवरेज. डेटा नाम की एक डिक्शनरी बना रही हूँ जिसमें मैंने क्या किया कि इंडेक्स जो है, ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स एक्चुअली डिक्शनरी में हमारे की और वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होता है. तो ये जो इंडेक्स है ना, वो मेरी CSV फाइल का कॉलम का नेम है. ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल, आपको केस सेंसिटिविटी यहाँ पे मेंटेन करनी होगी. तो इंडेक्स वाली कॉलम में क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो A आनी चाहिए. A में देखो हमने इंडेक्स नंबर ही पूछा है. ठीक है, फिर दूसरा की वैल्यू, की क्या है, टाइटल है, तो उसके लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो वेरिएबल B में स्टोर्ड है वैल्यू वो आना चाहिए. सेम थिंग ओवरव्यू, लैंग्वेज, वोट काउंट एंड वोट एवरेज के लिए. नाउ यू नो दैट वी कैन ऐड डेटा इनटू डेटा फ्रेम in the form of list, in the form of series, in the form of dictionary, right. तो यहाँ पे मैं df equals to df dot append कर रही हूँ. df क्या है, डेटा फ्रेम जहाँ पे मेरी CSV फाइल पड़ी है, ठीक है, रीड करके जहाँ पे मैंने स्टोर करवाई है. उसके बाद मैं यही df डॉट अपेंड करवा रही हूँ, मतलब डेटा फ्रेम का वो एक फंक्शन है अपेंड. अपेंड मतलब जोड़ना, राइट.
तो मैं जोड़ रही हूँ, क्या जोड़ रही हूँ, ऑलरेडी जितना भी डेटा है उसमें मैं और एक एंट्री जोड़ रही हूँ जो कहाँ पे स्टोर है, डेटा वाली डिक्शनरी में। इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, कि अगर इंडेक्स मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको चला लेंगे, लाइक ट्रू कर देंगे हम इसे, ठीक है, क्योंकि यूज़र को नहीं पता होगा कि अभी हमारा कौन सा इंडेक्स आएगा, राइट। देन प्रिंट करवाएंगे वो डेटा फ्रेम को विद द न्यू एंट्री, वेट इक्वल्स टू इनपुट अगेन। सिक्स्थ ऑप्शन क्या है कि हमें अगर कोई एक नई कॉलम ऐड करनी है हमारी डेटा फ्रेम में, तो हम पहले तो कॉलम का नेम पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइक इससे पहले तो बहुत सारी ऐसी रोज आ गई हैं जहाँ पे हमारे पास वो कॉलम की कोई वैल्यू नहीं होगी, न्यू कॉलम की, ठीक है, तो उसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पूछ रहे हैं। देन व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, डेटा फ्रेम में एक नई कॉलम ऐड करनी है तो हम कैसे करते हैं, डेटा फ्रेम का नाम, जो भी वेरिएबल में वो स्टोर्ड है उसका नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन आई राइट हियर कॉलम नेम, कि जो भी न्यू कॉलम एंटर करनी है वो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉल अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछी कि हमारे वो कॉलम न्यू ऐड कर रहे हो। सपोज मैं एक न्यू कॉलम ऐड करती हूँ रीजन, ठीक है, कि वो कौन से रीजन की मूवी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ सपोज इंडिया, कि जितने भी मूवीज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया आना चाहिए उनकी वैल्यू में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम। फिर प्रिंट करेंगे डेटा फ्रेम को, कोई भी की प्रेस करने पे विल कंटिन्यू। देन सेवेंथ ऑप्शन में क्या है, एंटर कॉलम नेम टू डिलीट, जो भी कॉलम का नेम है उसे हमें एंटर करना होगा, जो भी हमें डिलीट करनी है। Then we will use the del function, that is delete function of data frame, and of column, delete data frame of column, मतलब delete data frame in bracket, जो भी कॉलम को आपको डिलीट करना है उसका नाम, जो कहाँ पे स्टोर्ड है, कॉल नेम वाले वेरिएबल में। फिर वापस हम प्रिंट करवा देंगे डेटा फ्रेम को, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देन विल गो टूवर्ड्स द एथ ऑप्शन। एथ ऑप्शन क्या है कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करना है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, तो जब कोई एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तब हमें उसका इंडेक्स नंबर चाहिएगा, क्योंकि हम इंडेक्स के बेसिस पे ही डिलीशन करते हैं। तो पहले तो यूज़र से पूछेंगे दैट एंटर एनी इंडेक्स नंबर। देन व्हाट आई एम डूइंग इज, डीएफ में क्या स्टोर करवाना है, एक रो कम होके हमें स्टोर करवाना है वापस डीएफ वेरिएबल में ही। सो डीएफ इक्वल्स टू डीएफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है, कौन सी रो को डिलीट करेगा, तो जो है डीएफ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स नंबर पे। डीएफ डॉट इंडेक्स क्या करता है, वो इंडेक्स पे जो भी रिकॉर्ड है पूरा, ठीक है, जो भी पूरी रो है उसको फेच करके लाएगा। कौन से इंडेक्स पे, तो जो इंडेक्स यूज़र ने इनपुट में दिया है उस इंडेक्स पे जो भी रो है वो ये फेच करके लाएगा, और उसे हम कर रहे हैं ड्रॉप, ड्रॉप मतलब डिलीट। फिर प्रिंट करेंगे हम उसे डेटा फ्रेम को एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, सो द नाइन्थ ऑप्शन इज फॉर अपडेशन, ठीक है, कि हमें कोई एक पर्टिकुलर कॉलम की एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे। सो हियर इट इज elif यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू 9। देन we would first ask from the user that what is the index number that you want to update. Okay, then we are going to ask that which column name you want to update, because data frame is two dimensional, so we need here two things, right, the index number and the column name. After that we will print that before updation what was the value for that particular column name at that particular index, ठीक है। तो हमने क्या किया, df of column name and index number। उसके बाद we are asking that the new value that you want to update, okay, वो enter करो। So we are taking that in the input that whatever the new value he or she wants to update। After that what I am doing here is df of column name of index number, मतलब जो भी कॉलम नेम यूजर ने इनपुट की है उसके वो इंडेक्स नंबर पे जाके वी आर सेटिंग दैट अपडेटेड वैल्यू विच इज गिवन बाय द यूजर विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल कॉल्ड अपडेटेड वैल। ओके, उसके बाद वी आर प्रिंटिंग आफ्टर अपडेशन वैल्यू दैट व्हाट इज नाउ द न्यू वैल्यू, मतलब
यूज़र को एक कंफर्मेशन मिल जाए दैट हाँ मैंने जो चेंजेस किए वो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. Now one thing to notice over here is कि हम जो भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, वो टेम्प्रोरी चेंजेस हैं. वो हम सारे किस पे कर रहे हैं? डेटा फ्रेम पे कर रहे हैं. हम वो CSV फाइल पे अभी कोई चेंज अप्लाई नहीं कर रहे हैं. We are just changing in the data frame. This df is what? This df is the variable where we have temporarily read that CSV file. So please keep this in mind. After that, I am printing press any key to continue and will wait for the input of the user. Whenever he or she will be pressing any key, will be going to the this menu, data analysis menu. After that, user input 10. Now see, what is user input 10? It is like selecting the top movies. Okay, see here, rating wise report. मतलब जिसका रेटिंग सबसे ज़्यादा होगा उस मूवीज़ को हम सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम एंड आई एम कीपिंग इट इनटू द G वेरिएबल. सो हियर व्हाट आई डिड इज df.sort values by what average and what count. दो क्राइटेरिया के बेस पे मैं सॉर्ट करवा रही हूँ. ठीक है. वोटिंग एवरेज एंड वोट काउंट. फाइन. एंड देन असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स. मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं. असेंडिंग हमने फॉल्स कर दिया है. राइट. वी आर सॉर्टिंग दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. Then we are calling the clear function which would just enter 65 blank lines. Then we are printing top 20 movies based on their rating, and then we'll print this 120 times the hyphen thing, okay, for making a underline kind of thing. Then हम क्या कर रहे हैं, G का head ले रहे हैं 20. Why? Because we are showing here 20 top movies. So that is the reason we have written here G dot head in the bracket 20. Fine. After that, the 11th option, it is movies based on rating as well as language. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, df को df1 में मैं स्टोर करवा रही हूँ. क्या स्टोर करवा रही हूँ? df.language.unique कि कितनी यूनिक लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं हमारे डेटा फ्रेम में, वो हम प्रिंट करवाएंगे. पहले यूज़र से पूछना है कि आपको कौन से लैंग्वेज के बेस्ड पे टॉप मूवीज देखनी है. ठीक है. सो हियर विल प्रिंट अवेलेबल लैंग्वेजेस विच इज स्टोर्ड इन माय वेरिएबल df1. Then we'll be printing 2 blank lines and then we'll be asking the user that which language do you want to see. Okay, which language top movie you want to see. Then what I'm doing is df1 में वापस रीराइट करवा रही हूँ df.language equals to language 1. इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये df.language मतलब हमारे डेटा फ्रेम में जो लैंग्वेजेस हैं वो बराबर हैं. किसके बराबर? जो यूज़र ने इनपुट दिया उसके. वी हैव टू चेक दैट, राइट. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू then that very particular language's data would be stored in df1 data frame. After that, we are calling the clear function. Then we are printing top 20 movies based on rating as well as language. And here we are giving lang1, which is the language inputted by the user. Then we are printing a line kind of thing, okay. And then we are printing df1.sort values. We are sorting the values on the basis of vote average in the descending order and we are getting the head of 20. ठीक है. बट ये सॉर्ट किसके बेस पे करवाया? df1, जो कि ये वेरिएबल है जिसमें हमने सिर्फ वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की मूवी स्टोर करवाई है. ठीक है. एंड देन वी आर आस्किंग द यूजर टू प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. द 12th ऑप्शन इज क्वाइट सिंपल, df.describe, जो हमें सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे देता है. ठीक है. क्वार्टाइल दे देता है, सम, एवरेज, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड हियर. आफ्टर दैट 13th ऑप्शन इज फॉर एग्जिटिंग दिस डेटा एनालिसिस मेन्यू. ठीक है. तो हम इसको एग्जिट कर देंगे एंड विल ब्रेक द लूप. एल्स वी विल प्रिंट दैट एंटर अ वैलिड चॉइस. सो दिस वाज all about data analysis menu. I think the graph menu will discuss in the another part of this video because
or else this video will go so long and आप लोग पूरा video नहीं देखते हो. Right, you don't watch the video till end part. So I'll end my video over here and will make the part 3 very soon. So till then, if you like this video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel, and don't forget to share these videos among your friends. Thank you for watching.